وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے حالیہ بیان کو پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دے دیا۔ ٹویٹ کیا، عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اقتدار چاہتے ہیں، چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے۔ عمران خان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے۔ پاکستان اس وقت بڑے سنجیدہ مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ عمران خان ایک دن کہتے ہیں کہ بات کروں گا اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ مذاق تھا۔ ایسے بندے کی باتوں کو کیسے سیریس لیا جا سکتا ہے؟ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کو نشانے پر لے لیا، کہا عمران خان یاد رکھیں ان کے لیے اب جہاز بھرنے والے موجود نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اگر سیاسی یتیم بن کر انتخابات میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہم بھاگنے والے نہیں، بھرپور مقابلہ کریں گے۔ وفاقی وزیر کے مطابق نیب کالے قانون پر مبنی ادارہ، اس سے اداروں اور لوگوں کو خراب کیا گیا۔ یقینی طور پہ لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں، یقینی طور پہ ہر شخص پریشان ہے، لیکن اس کو ریزالو کرنا جو ہے تو پھر سب کو مل کے کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی آپ اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے، بھی کیوں نہیں چلنے دیں گے؟ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں یا لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں؟ ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا، دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا۔ تو جو اب یہ نہیں پتا مذاق کب کرتے ہیں اور سیریس کب ہوتے ہیں، تو ان سے کون بات کرے گا؟ تو یہ مسائل ہیں۔ لیکن جو اس وقت پروجیکٹ عمران کو چلا رہے تھے، انہوں نے ہر اربہ استعمال کیا، جہاز بھر بھر کے ایم پی ایز ایم این ایز کے لے کے جاتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے، ہم نے کوئی نہیں بھاگنا۔ نہ سہولت کار اویلیبل ہے، نہ وہ جہاز اویلیبل ہے، نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، آئیں، ہم تو ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں۔ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے، یوسف رضا گیلانی کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ عمران خان کا جھوٹ پر مبنی بیانیہ ایکسپوز ہو چکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط بیٹھیں تاکہ راستے نکل سکیں۔ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادی جماعت اپنے اپنے علاقوں میں بڑی بااثر ہیں۔ عمران کو غلط فہمی ہے کہ انہیں الیکشن میں 2/3 اکثریت ملے گی، آئندہ بھی ملک میں مخلوط حکومت بنے گی اور وہ حکومت میں نہیں ہوں گے۔ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ 2 اسمبلیاں توڑیں گے، ان 2 اسمبلیوں کا ہی الیکشن ہوگا، باقی ملک میں الیکشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے۔ جو بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہو، ان کا جو بیانیہ تھا وہ نہیں چل سکا، وہ ایکسپوز ہو گئے۔ اگر گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں یا اگر وہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو انکنڈیشنل بیٹھتے ہیں۔ جنرل باجوہ کو توسیع دے کر بہت بڑی غلطی کی، چیئرمین تحریک انصاف کا اعتراف۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ توسیع دینا پڑی۔ جنرل باجوہ جو کہتے تھے وہ کر دیا کرتا تھا، یقین دلایا گیا تھا کہ حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے ساتھ گیم چل رہی ہے۔ حکومت مارچ کے آخر تک الیکشن پر تیار ہیں تو ہم اسمبلیاں توڑنے سے رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑت کا ٹویٹ، جنرل باجوہ کے ریٹائرڈ ہوتے ہی پی ٹی آئی والوں نے جھوٹ کی انتہا کر دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑت کا رد عمل، ٹویٹ کیا کہ عمران نیازی جنرل قمر جاوید باجوہ سے تحریک عدم اعتماد روکنے کا غیر آئینی تقاضا کرتے رہے۔ جنرل باجوہ کے انکار پر عمران نیازی جھوٹے الزامات پر اتر آئے، غیر آئینی مطالبے کے بدلے پرکشش پیشکش کی گئی، شرم آنی چاہیے۔ پی ڈی ایم انتخابات سے بھاگتی رہی تو ہم صوبائی انتخابات کے لیے جائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن پہلے قومی اسمبلی کے بعد میں ہوں گے۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ انتخابات کی تیاری کریں۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن پہلے اور قومی اسمبلی کے بعد میں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ انتخابات کی تیاری کریں، اور اگر پی ڈی ایم مان جاتی ہے تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور ہدایات بھی جاری کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تیاری کی جائے۔ اہم خبر ہے، مانسہرہ شارع قاغان پر مالاکنڈ کے مقام پر پہاڑ سے گر کر تیندوا زخمی ہو گیا ہے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر محکمہ وائلڈ لائف نے زخمی تیندوے کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے، جہاں پر اس کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف نے اس زخمی تینوے کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ یہ تینوا جو کہ نیو کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پہاڑی سے گر کر زخمی ہوا ہے، اور ابھی اس تینوے کی حالت کے بارے میں جانیں گے، ہم رابطہ کریں گے ہمارے نمائندے عقیل احمد سے۔ عقیل بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ منسرا کے تحصیل اشارہ بالاکوٹ میں اشارہ کغان پہ ملکنڈی کے مقام پہ یہ جو تینوا ہے یہ ایک پہاڑی سے جا رہا تھا، جیسے ہی اس کا پاؤں وہاں سے پھسلا وہ نیچے سڑک پہ آ لگا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جہاں پہ مقامی لوگوں اور محکمہ جنگلات کے اسٹاف نے جو ہے بر وقت محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع دی، جہاں سے محکمہ وائلڈ لائف نے تینوے کو مانسرا میں وائلڈ لائف پریزنٹری میں منتقل کر دیے گئے، جہاں پہ اس کی طبی امداد کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ بتایا جاتا ہے محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے کہ جو تینوا ہے وہ قدرے بہتر ہے اور اس کی جو تندرستی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عقیل آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے تمام سیاسی جماعتوں کو دھوکے باز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ تمام جماعتیں عوام کے سامنے کھل کر ایکسپوز ہو چکی، کسی نے تبدیلی تو کسی نے روٹی کپڑا مکان کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا۔ کرپٹ سیاستدان نظریہ پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تانیہ والا میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے موقع دیا تو 75 سال سے لوٹنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دہشت گرد تنظیم داعش نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق داعش کی پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بارے میں رپورٹس دیکھی ہیں۔ افغان حکام سے مشاورت اور آزادانہ طور پر ان رپورٹس کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ حملہ یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی سے افغانستان خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنی تمام تر اجتماعی طاقت کے ساتھ عزم سے کام لینا چاہیے۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ مہنگائی کا طوفان ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سبزیاں، پھل اور چکن سمیت تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ روزانہ استعمال کی سبزیاں، پیاز اور ٹماٹر نے قیمتوں کی ڈبل سینچری کر لی ہے۔ آلو نے بھی سینچری مکمل کر لی ہے۔ ریلیف کی فراہمی کے لیے لگائے گئے اتوار بازار بھی برائے نام رہ گئے ہیں۔ غریب افراد کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ سبزیوں اور پھلوں سمیت تمام اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کراچی کے اتوار بازاروں میں روزمرہ استعمال کی سبزی پیاز 150 روپے اور ٹماٹر 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ مٹر 400 روپے کلو تک پہنچ چکا۔ انار 300 روپے کلو جبکہ کیلے کی دام 100 روپے فی درجن ہے۔ اسلام آباد میں ٹماٹر فی کلو 140، کریلا 100 روپے جبکہ ادرک 288 روپے تک جا پہنچا۔ فیصل آباد کے بازاروں میں پیاز 130، آلو 80 اور ٹینڈے 180 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سستے پروٹین کا ذریعہ مرغی کا گوشت بھی 400 روپے کلو کو چھو رہا ہے۔ پشاور میں بھی ٹماٹر، آلو اور پیاز کی قیمتیں 150 سے 250 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہیں۔ سبزی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ کہتے ہیں حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ ان کی پریشانی کم ہو سکے۔ ایک جانب بڑھتی ہوئی مہنگائی تو دوسری جانب گیس کی شدید قلت۔ ملک بھر میں گیس کی قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ لوگ مہنگے داموں بازاروں سے گیس اور کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے گیس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ چھٹی کے روز سوئی گیس کی بھی چھٹی، شہری گھروں سے باہر ناشتہ کرنے پر مجبور۔ ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی بندش کے باعث گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ بھی پریشان۔ کراچی میں کھانے کے اوقات میں گیس نہ ہونے کے باعث لوگ بازار سے ناشتہ خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ دکانداروں کو گاہکوں کے رش کے باعث سلنڈرز کی مہنگی گیس استعمال کرنا پڑ رہی ہے۔ گیس نہ ہوٹل پہ آ رہا ہے نہ گھروں میں آ رہا ہے۔ ہم لوگ کاروبار بھی ہم لوگوں کے خراب ہوئے ہیں، گھر کا نظام بھی سارا درم بھرم ہوا ہے
बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए लेट होते हैं। सुबह कभी कभी तो हम लोग बगैर नाश्ते के घर से आ जाते हैं, होटल पे हम लोगों को नाश्ता करना पड़ता है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे दोपहर और शाम को गैस न होने के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। जो मतलब अगर चीज घर में 5 रुपए की मिलती है, हमें 50-60 की लेनी पड़ती है, तो ये मजबूरियां हैं। बच्चे भी भूखे, औरतें भी तकलीफ में, तो तमाम घर जो है डिसिप्लिन टूट गया। फैसलाबाद में भी घरेलू गैस की बंदिश का सिलसिला थम ना सका। गैस की तवील लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। सर्दियाँ गैस नहीं आ रहा, गर्मियाँ की बत्ती नहीं आ रही, बड़ी परेशानी है जी। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी तंगी ना रोटी पकड़ी है, लकड़ी महंगी है जी, लभदियाँ नहीं जी, पैसे की कमी है। मुल्तान में भी सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई। लोग छुट्टी के रोज भी घरों में नाश्ता तैयार नहीं कर सकते। गैस तो होती नहीं है, रोजाना का 500-600 का नाश्ता तो बाहर से आता है। सुबह से आए हुए हैं, गैस तो है नहीं घर में, यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है नाश्ते के लिए। मुल्क के तूल और अर्ज में गैस की बंदिश ने लोगों के मामूलात जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है, जबकि हुकूमत गैस के मसले पर काबू पाने में ताहाल नाकाम है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के इंतखाबात में PTI और मुत्तहिदा अपोजिशन ने 2 अजला में कामयाबी अपने नाम कर ली। कई अपसेट्स भी हुए। नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के मेंबर असम्बली मियाँ वहीद वादी नीलों में अपना अपना हल्का इंतखाब ना जीत सके। 787 नशिस्तों में से 708 के गैर हतमी नताइज आ गए हैं। तहरीक इंसाफ 229 नशिस्तों के साथ पहले, आज़ाद उम्मीदवार 199 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 129 सीटें जीतकर नून लीग तीसरी और पीपल्स पार्टी 104 नशिस्तों के साथ चौथी पोजीशन पर है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को 28 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। तहरीक लब्बैक ने 7, JUI, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी ने 4-4 सीटें अपने नाम की। वज़ीर आज़म के सिंध कल्चर डे पर सिंधी बहन भाइयों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिंधी सकाफत सदियों से खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। लाहौर के इलाके शाहजमाल में एक घर में आग लग गई। झुलसकर एक शख्स जाँ बहक हो गया, एक जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। और मानसेहरा शाहराह कागान पर मालकुंडी के मकाम पर पहाड़ी से गिरकर तेंदुआ जख्मी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने जख्मी तेंदुए को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले किसी उम्मीदवार को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने इस फैसले में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। मतनाज़ ट्वीट केस। कोयटा की जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने सेनेटर आजम सवाती का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पुलिस के आजम सवाती के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर आजम सवाती को जुडिशल मैजिस्ट्रेट दहम की अदालत में पेश किया गया। आजम सवाती के खिलाफ कोयटा के नवाही इलाके कचलाक में मतनाज़ ट्वीट का मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा को 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड पर कोयटा मुंतकिल किया गया था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध कल्चर डे पर तमाम सिंधी बहन भाइयों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज बाबुल इस्लाम सिंध का सकाफती दिन है। सिंध की तहज़ीब ना सिर्फ खित्ते बल्कि इंसानियत की तहज़ीब में अपनी सकाफत से खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बाशाऊर और मुहज़्ज़ब कौमें अपनी सकाफत, तहज़ीब और ज़ुबान कभी नहीं भूलती। सिंध सूफी बुजुर्गों, इल्म दोस्तों और बहादुरों की धरती है। अहले सिंध सकाफत को जिंदा रखने के साथ साथ अपनी धरती पर हर तरह की शिद्दत पसंदी को जगह नहीं दे।
अभी अहम खबर देंगे आपको। सैलाब के बाद वबाई अमराज बेकाबू हो गए हैं। दादू की तहसील जोही के गांव बक्कर जमाली में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। काली खांसी, मलेरिया और डेंगू में 32 बच्चों की हलाकत हो चुकी है। बीमारियों के मजीद बार भी जारी हैं। 2 माह में तहसील जोही में मरने वालों की तादाद 67 हो चुकी है। वहाँ की मजीद सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाब रुस्तमानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अरबाब, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या किया जा रहा है? अब सर्दी बढ़ती चली जा रही है, वबाई अमराज भी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, दादू के तहसील जोही के गांव बखर जमाली में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। काली खांसी, मलेरिया और डेंगू में 32 बच्चे 1 माह में हलाक हो चुके हैं। बीमारी का मजीद वार भी जारी है। आए 5 बच्ची गांव छिड्डी में 4 साल बच्ची जान बाक हुई है, जबकि 2 माह में मरने वालों की तादाद तहसील जोही में 67 हो गई है। इलाके मक्के में कहना है कि वबाई अमराज ने सर उठाया, लोग मर रहे हैं। इसके इलाके सेहत के सहूलियात की फुकदान भी बहुत है। गाँव बखर जमाली 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। गाँव खंदानी में एक ही हफ्ते में काली खांसी से 10 मासूम बच्चे जिंदगी जंग एक ही हफ्ते के दौरान 10 बच्चे अपनी जान से जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरबाब रुस्तमानी, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। फैसलाबाद में रेत, बजरी, ईंटों और सरिये समेत दीगर तामीराती सामान की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं, जिससे आम आदमी के लिए मकान तामीर करना भी अब नामुमकिन हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शेराज। महंगाई ने आम आदमी के लिए अपना आशियाना बनाना नामुमकिन बना दिया। मजदूर तबका भी बेरोजगार होने लगा। सीमेंट हमने उतरवाया है, ये तकरीबन 200 बोरी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पहले 800-900 की बोरी थी, अब 1200 के लगभग है। तामीराती सामान, बजरी, सीमेंट, ईंटों और सरिये समेत दीगर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरबा इजाफा। ईंटों की कीमत 9000 से बढ़कर 12000 रुपए फी 1000 ईंट, जबकि सीमेंट की बोरी की कीमत 470 से बढ़कर 1200 रुपए तक जा पहुंची। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होने वाले इजाफे से जेर तामीर मकानों के मालकान सर पकड़ कर बैठ गए, जबकि दुकानदार का काम भी मान पड़ गया। नहीं जी, बिल्कुल वेले फिर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं, बड़ी महंगाई बढ़ी है। मकानों का तामीराती काम रुकने से मजदूरी करने वाला अमला भी रोजगार से महरूम हो गया। शहरी कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ शहरियों को मसाइल का सामना है, बल्कि अपना घर बनाने का ख्वाब भी अधूरा दिखाई दे रहा है। तामीराती मटेरियल महंगा होने के बायस न सिर्फ शहरी परेशान है, बल्कि मजदूर तबका भी बेरोजगार हो रहा है। कैमरामैन सलीम के साथ वकास शेराज, न्यू फैसलाबाद। उधर इस्लामाबाद के लोक विरसा मेले में खैबर पख्तूनख्वा की फरहत मैजबीन के रंग बिरंगी सूती धागों से बने फनपारे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। हुनरमंद फरहत के बारे में मज़ीद जानते हैं आमना जंजुआ की रिपोर्ट में। कुछ करने की हो लगन तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मर्दान की बाहिम्मत खातून दूसरों के लिए मिसाल बन गई। फरहत जबीन ने लोक विरसा मेला में खूबसूरत हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड फ्रेम बनाकर सबको हैरान कर दिया। रंगीन धागों से बने फ्रेम, बेडशीट्स, मिरर वर्क और खूबसूरत चादरें शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गईं। इस बाहिम्मत खातून का कहना है कि मेरा फन खुदादाद है, कहीं से कोई तरबियत हासिल नहीं की। बचपन से ही इस आर्ट से दिलचस्पी थी। बचपन से तो मुझे शौक था, मुझे खाने पकाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, तो मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट थी। फरहत ने 2012 से घर में हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड फ्रेम बनाना शुरू किए, जिसमें उनके शोहर ने उनका भरपूर साथ दिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और उसने मुझे कहा कि तुमने इतना शौक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें, तो ये काम शुरू करो। खैबर पख्तूनख्वा की फरहत का काम महज रंगों और सूती धागों से बनी तस्वीर ही नहीं, इसके पीछे लगन, हिम्मत, जज्बे की पूरी एक दास्तान है। फरहत जैसी खवातीन न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी ताकत हैं, बल्कि ये अपने हुनर के जरिए दूसरों की घरों की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। और कोयटा के एक डॉक्टर की दिलचस्प कहानी। जिस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़े, इसी में मजदूर की हैसियत से काम भी किया और फिर इसी कॉलेज के हॉस्पिटल में सर्जन बने। ये डॉक्टर कौन है, तारुफ करा रहे हैं कोयटा से शाहनजर बादीनी। ये कोयटा के सर्जन डॉक्टर आजम बंगुलजई से बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए तो अपने तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए कॉलेज की नई ज़ेर तामीर इमारत में मजदूर की हैसियत से काम किया। जहाँ मैं पढ़ता था उस कॉलेज से ज़रा आगे हमारी नई बिल्डिंग बन रही थी बोलान मेडिकल कॉलेज की, तो वहाँ पे मजदूरों के लिए ज़रूरत थी।
मैंने कहा क्यों ना, एक छत के तले यहाँ मैं पढ़ूं और वहाँ पे जा किसी कॉलेज का एरिया है वहाँ पे मैं मजदूरी करूँगा। तो मैं वहाँ के उन दिनों 30 रुपए यौमिया दिहाड़ी पे मजदूरी किया करते थे। MBBS के बाद जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची से उन्होंने जनरल सर्जरी में MS किया। उन्होंने बोलान मेडिकल कॉलेज से जुड़े बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में जनरल सर्जन के तौर पर फराइज सरंजाम दिए। जब मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके आ गया तो उसी बोला मेडिकल कॉलेज में, जहाँ मैंने मजदूर की हैसियत से स्टार्ट किया था, एक मेडिकल स्टूडेंट की हैसियत से, फिर मेरा वहाँ पे एज ए सर्जन भी मैंने काम किया। तो ये एक ट्राइका सा बन गया और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम लिए। डॉक्टर आजम बंगलजी कहते हैं इन्हें इस बात पर फख्र है उन्होंने तालीम के दौरान मजदूर की हैसियत से काम किया। शाहनज़र बादीनी, न्यू क्वेटा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर की रेस में गवर्नमेंट कॉलेज के उसामा हसन ने पहली पोजीशन हासिल की। मज़ीद तफसीलात वकास गौरी की रिपोर्ट में। 5 किलोमीटर तवील मैराथन रेस का आगाज गवर्नर हाउस से किया गया। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के 2000 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी और कमिश्नर लाहौर अली जान समेत उसातिज़ा भी तलबा के हमरा रेस में शरीक हुए। एक ज़बरदस्त मैराथन का आगाज़ किया गया और अब फिनिश की गई। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जहाँ बॉयज़ ने हिस्सा लिया, गर्ल्स ने, हमारी बहनों बेटियों ने भी हिस्सा लिया और बड़ी ही ज़बरदस्त एक मैसेज गया है जेंडर इक्वालिटी का। मैराथन का मोटो था जस्टिस, पीस एंड टॉलरेंस फॉर ऑल। ये हमारी माशरे की बहुत अहम ज़रूरत है। गवर्नमेंट कॉलेज के उसामा हसन और लड़कियों में पंजाब यूनिवर्सिटी की सुनैना मुसव्वर ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज के कलीम अख्तर और हदीका नासिर रहे। तीसरी पोजीशन पंजाब यूनिवर्सिटी के समीउल्लाह और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की महानूर असगर ने हासिल की। प्रोफेसर असगर जैदी और कमिश्नर ने जीतने वाले तलबा को ताज पहनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस पोजीशन हासिल की और थैंक यू सो मच सर जाहिद, सुपीरियर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इतनी ट्रेनिंग दी, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैंने सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। इसमें मेरे कोच की बहुत मेहनत है। जो आज मैंने मैराथन रेस लगाई, मेरा फर्स्ट टाइम था मैराथन रेस में, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी फ्यूचर की प्लानिंग यही है कि मैं अपने इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकूँ। इस मौके पर तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आलमी हालात और वाक़यात में आपको बताएंगे कि भारत में मुसलमानों के लिए दिन ब दिन जीना दो भर होता जा रहा है। इंदौर के एक कॉलेज में नमाज पढ़ने पर 4 प्रोफेसरों के खिलाफ इंतहा पसंदी को हवा देने की शिकायत दर्ज करा दी गई। RSS की तलबा तंजीम APB की शिकायत पर 4 प्रोफेसर्स को 5 दिन के लिए क्लासेस लेने से रोक दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ABVP को तकलीफ थी कि कॉलेज में ज़्यादा मुसलमान असातिज़ा को भर्ती किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला बर आलूद रहा। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। गुज़श्ता रोज़ ज़ियारत, कल्लात, गोफ्त में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। तुर्किया में तैयार करदा बगैर पायलट उड़ने वाले लड़ाका तैयारे ने अपनी पहली परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। ये तैयारा किसी भी फाइटर जेट की तरह फिजा और ज़मीन पर मौजूद हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसे उड़ाने के लिए पायलट का कॉकपिट में होना ज़रूरी नहीं। यह तैयारा 1500 किलोग्राम तक पे लोड के साथ परवाज कर सकता है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।